video, we are going to learn the best sentences that you must speak on the regular basis. ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जो बिगिनर हैं. अगेन आई एम सेइंग इट वेरी लाउडली, दिस वीडियो इज गोना बी फॉर द बिगिनर, नॉट फॉर एनी इंटरमीडिएट इंग्लिश स्पीकर, नॉट फॉर एनी एडवांस इंग्लिश स्पीकर. तो अगर आप एक बिगिनर अपने आप को कंसीडर करते हैं, आप अभी इंग्लिश की शुरुआत कर रहे हैं, इन सभी सेंटेंसेस को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है. तभी जाकर आप एक कॉन्फिडेंट के साथ अंग्रेजी बोल पाएंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम. तो पहला जो हमारा शुरुआत होता है वो होता है ग्रीटिंग एंड बेसिक इंट्रोडक्शन से. जी हाँ, बहुत से लोग कहेंगे कि हमने इसको लास्ट वीडियो में कवर किया था, बट हम इसको प्रैक्टिस करने वाले हैं. सो वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस इट step by step right now, right here with me, right? Let's get started. Very common, like what's your name? People ask sometimes what's your name or what is your name, right? Both are correct. And the answer is my name is Rahul. I am Rahul. I am Abhishek Pandey, right? This is how we answer it. How are you? People say, how are you? How are you? Right? So we answer it, I'm fine, thank you. यहाँ अवॉइड करने वाली बात ये है दोस्त, मोस्ट ऑफ पीपल से आई एम फाइन एंड दैट्स इट, राइट? ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है क्योंकि जिसने पूछा है आपसे ये क्वेश्चन वो भी चाहता है कि उससे भी ये क्वेश्चन पूछा जाए. तो जरूर ये बोलिएगा आई एम फाइन थैंक यू एंड यू, राइट? एंड हाउ अबाउट यू, ऐसे ही बोला जा सकता है. ठीक है. वेयर आर यू फ्रॉम? कोई पूछता है कहां से हो आप, वेयर आर यू फ्रॉम? सो आंसर इज आई एम फ्रॉम दिल्ली. You may be from somewhere else, like I'm from different country, like I'm from Australia, I'm from United States, something like that. Okay, तो इस तरीके से ही बोला जा सकता है. या इंडिया के जो स्टेट्स हैं, I'm from Gujarat, I'm from Lucknow, right? You can say you are from the place name, right? What do you do? What do you do? करते क्या हैं आप? What do you do? That means आप क्या करते हैं? You can directly say I'm a student. I'm a student. If you're not a student, you can say I am an engineer, I'm an English teacher, I am a professor. So whatever is your profession, you'll directly say I'm a doctor, I'm an engineer, right? So what do you do means आप करते क्या है, means आपका profession क्या है. Nice to meet you. आपसे मिलकर अच्छा लगा. Answer would be nice to meet you too. Nice to meet you too. आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा, राइट? या लाइकवाइज, इसका मतलब भी यही होता है. किसी ने बोला आपसे नाइस टू मीट यू, आप बोलोगे लाइकवाइज, राइट? सो दिस इज हाउ वी प्रैक्टिस वेरी कॉमन सेंटेंसेस दैट आर स्पोकन डे टू डे इंग्लिश, लाइक ग्रीटिंग, बेसिक इंट्रोडक्शन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. ओके, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. व्हाट टाइम डू यू वेक अप? वेक अप, wake up, you open your eyes, right? What time do you wake up? कितने बजे जगते हैं आप? I wake up at 7 o'clock. I wake up at 7 o'clock. Maybe you wake up so late, so you can say I wake up at 9 o'clock. Or you can say I wake up early. अगर आप कोई समय नहीं बताना चाहते हैं तो you can directly say I wake up early. I wake up late, right? अच्छा, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन यहाँ पे होती है. What time do you wake up? Or sometimes say what time do you get up? You know, get up means जब आप अपने बिस्तर से उठ जाते हैं, बिस्तर को छोड़ देते हैं, तो उसको भी कहा जाता है. तो बोलते हैं what time do you get up? So I get up at 7 o'clock in the morning. So what is the difference between wake up and get up? Wake up means you open your eyes. You know, you are on the bed, but you just open your eyes. And get up means you just leave your bed. Right? So if somebody asks you, what time do you wake up? You can answer, I wake up at 6 o'clock in the morning. I wake up at 9 o'clock in the morning if you wake up late, right? Let's move to the next one. What do you eat for breakfast? What do you eat for breakfast? बहुत से लोग breakfast बोलते हैं. So वो कहते हैं what do you eat for breakfast? It's never breakfast. It's the real pronunciation of that is what do you eat for breakfast? Breakfast, right? So the answer would be whatever you eat. Like I eat roti sabji, or in English you can say I eat chapatis and vegetable. I drink tea in the morning.
बहुत बार लोग ये भी कहते हैं आई टेक टी इन द मॉर्निंग, सो ड्रिंक की तरह जगह बहुत से लोग टेक का भी यूज करते हैं, ठीक है। सो इफ समबडी आस्क दिस क्वेश्चन टू यू, व्हाट डू यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट, यू कैन से आई ईट राइस एंड पल्सेस फॉर द ब्रेकफास्ट। जो भी आप खाते हो, आई ईट टी एंड ब्रेड फॉर द ब्रेकफास्ट, राइट। सो यहां पर याद रखने वाली बात यह है कि आपको ब्रेकफास्ट नहीं ब्रेकफास्ट कहना होता है फॉर द प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट, हाउ डू यू गो टू कॉलेज, हाउ डू यू गो टू कॉलेज, कॉलेज कैसे जाते हैं आप? आई गो बाय बस, आई गो बाय बस, आई गो बाय बाइक, आई ट्रैवल एवरी डे, मैं हर रोज ट्रैवल करता हूं, राइट। सो हाउ डू यू गो टू कॉलेज? I go by bus, I go by metro, I go by train, I go by bike, right? I go on foot, right? So this can be your answer. So जब भी किसी ने आपसे पूछा कि भाई आप कॉलेज कैसे जाते हो, या कॉलेज की जगह कुछ और किसी ने बोल दिया कि how do you go to school, या how do you go to office, so you can say I go to office by bus, I go to office by bike, I go to office by train, right? So there can be a different medium of going to college or office, right? So यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको ये ध्यान रखना है, किसी से जब भी किसी को पूछना है आपको कि आप ये कैसे जाते हो यहाँ पर, so you can say how do you go to, how do you go to college, how do you go to school, how do you go to office. This is how the answer would be, I go by bus, I go by train. Let's move to the next one. What time do you leave home? What time do you leave home? घर कितने बजे छोड़ते हैं आप, मतलब आप घर से कितने बजे निकलते हैं, इसका मतलब ये भी होता है। सो what time do you leave home? अच्छा, यहाँ पर ना एक चीज मैं बताना चाहूंगा, बहुत से लोग leave और live में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। live मतलब होता है रहना, जैसे I live in Delhi, right? बट यहाँ मतलब what time do you leave home? कितने बजे आप घर से निकलते हैं, ये live और leave में फर्क होता है, right? So I leave home at 9 a.m. I leave home at 9 a.m. You can also say I leave home early, I leave late, I leave at 4 o'clock in the morning, right? Whatever is your answer, it doesn't matter, right? So अगर यहाँ पे आपको मान लो कि क्वेश्चन को चेंज करना है, ये होम की जगह कुछ और करना है, तो आप ये बोल सकते हैं what time do you leave your office? What time do you leave from school, right? आप स्कूल से कितने बजे निकलते हैं, ऑफिस से कितने बजे निकलते हैं, तो ये सब आप बना सकते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना what time do you leave, और उसके बाद जो भी आपको करना है, what time do you leave office, what time do you leave home, right? Answer, I leave home at 9 a.m. I leave office at 6 p.m. in the evening. Yeah, I leave early, I leave late. Got it? Okay, next one. What did you do yesterday? बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भाई what did you do yesterday? कल आपने क्या किया था, या कल क्या किया आपने? So answer would be I watched TV. I watched TV. यहाँ ध्यान रखने वाली बात होती है कि we use second form of the verb, क्योंकि ये हो चुका है, that's why. So I watched TV. I stayed at home. मैंने टीवी देखा, या घर पे ही था मैं। ऐसे भी कोई बोल सकता है कि what did you do day before yesterday? यानी परसों आपने क्या किया था घर पे। होता है ना, बहुत से लोग जैसे आपके पेरेंट्स वगैरह आते हैं, when they come they ask this question to you quite often that what did you do whole day? हाँ भाई, पूरे दिन क्या किया था आपने? So आप कह सकते हो I studied whole day, to be nice, right? I studied whole day, I stayed at home, I watched TV whole day, I played cricket whole day, right? So इसको अपने अकॉर्डिंग आप बना सकते हो सेंटेंसेस को। अब यहाँ पे सिर्फ यही करना है what did you do, अब कब, yesterday, आज, या कहीं पर what did you do at home, अपने घर पे क्या किया। So I played chess at home, I watched TV at home, right? I played cricket with my friends, right? So this is how you answered the questions, right? Let's move to the next one. What are you doing now? What are you doing now? Right now, what are you doing? So the answer is I'm studying. I'm learning English. For me, I'm teaching English. मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, right? इसका मतलब क्या हुआ? What are you doing now?
अभी क्या कर रहे हो आप, नाउ, व्हाट आर यू डूइंग नाउ. सो ये किसी को भी आप बोल सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ योर मदर इज सिटिंग देयर और डूइंग सम स्टफ, तो आप पूछ सकते हो, मम्मी व्हाट आर यू डूइंग नाउ. So she can say, I am cooking, I am making breakfast for you, I am watching TV, something like that, right? So what are you doing now means abhi aap kya kar rahe ho. The answer can be various. I am dancing, I am playing cricket, I'm learning English, I am talking to my friend. So this is how you can answer. Next, what will you do tonight? What will you do टुडे नाइट मीन्स टू नाइट, मतलब आज रात आप क्या करोगे. दिस डिफाइंस फ्यूचर बिकॉज वी आर यूजिंग विल. व्हाट विल यू डू टुनाइट, आज रात क्या करोगे. होते हैं ना बहुत से फ्रेंड्स एक दूसरे को टीज करते हैं, क्या करेगा भाई आज. व्हाट विल यू डू टुनाइट. सो आई विल वॉच अ मूवी टुनाइट, आई विल वॉच अ मूवी, आई विल रिलैक्स एट होम, रिलैक्स करूंगा मैं. या हो सकता है कि किसी को पार्टी अटेंड करना है, तो हम पूछें भाई व्हाट विल यू डू टुनाइट. I will attend a party tonight. I will talk to my friend tonight. I will go for a movie tonight. I will go out tonight. Right? I will go night out tonight. Right? तो बहुत सारे आंसर हो सकते हैं. बस आपको ध्यान रखना है, किसी से जब आप पूछते हो तो आप पूछोगे what will you do tonight? आज रात आप क्या करेंगे. राइट? या ऐसे भी आप किससे पूछ सकते हो, तो रात की बात हुई, आप ये भी बोल सकते हो what will you do today? आज आप करोगे क्या. ठीक है. सो आई विल स्टडी इंग्लिश, आई विल स्पीक इन इंग्लिश, आई विल इंप्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल. राइट. नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे दोस्तों कि हम जैसे कि जाते हैं कहीं पे कपड़े वगैरह खरीदना होता है या कहीं भी शॉपिंग वगैरह करनी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारे पास इंग्लिश के सेंटेंसेस होने चाहिए. ठीक है. तो मान लो कि इससे पैसा पूछने के, भाई ये चीज कितने की है, तो हम पूछते हैं हाउ मच इज दिस. हम उस चीज को उठाते हैं, कुछ भी चीज, जैसे फॉर एग्जांपल ये फोन कवर है हमारे पास, तो हम इसको उठाएंगे, बोलेंगे हाउ मच इज दिस, कितने का है ये. तो द आंसर वुड बी लाइक इट इज 500 रुपीज, और इट इज 600 रुपीज, इट इज 200 रुपीज. राइट. तो कुछ भी अगर आपको पूछना है, किसी चीज का प्राइस पूछना है, तो उस चीज को टच करिए या उस चीज को उठा लीजिए या उस चीज को पॉइंट कर दीजिए और बोलिए हाउ मच इज दिस, हाउ मच इज दिस, हाउ मच इज दिस, कितने का है भाई, हाउ मच इज दिस. So the answer would be it is 500, it is 1000, it is 2000. ये जो दुकानदार होगा वो आपसे ये बोलेगा. या अगर आप दुकानदार हैं तो आपसे कोई पूछता है कि हाउ मच इज दिस, या अगर उसको मान लो उसका नाम लेना है कि हाउ मच इज दिस शर्ट, ये शर्ट कितने की है, तो आप बोलोगे इट इज 1000 रुपीज. या आप ऐसे ही बोल सकते हो, होता है ना कि बहुत बटरिंग करते हैं, तो हम बोलते हैं इट इज नॉट एक्सपेंसिव. सर ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, इट इज नॉट सो एक्सपेंसिव, इट इज वेरी चीप, इट इज ओनली 4000 रुपीज. है ना, बहुत से लोग बटरिंग करते हैं इस चीज को. तो कभी भी आपको प्राइस पूछना है तो बोलोगे हाउ मच इज दिस. सो इफ यू गो टू द मार्केट यू कैन डायरेक्टली से हाउ मच इज दिस. सो द आंसर दैट पर्सन इट्स 10 रुपीज ओनली, इट्स 20 रुपीज ओनली. करेक्ट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. अच्छा, हाउ मच इज दिस को कहने का दूसरा तरीका भी है जो हम कह सकते हैं हाउ मच डज इट कॉस्ट, ये कितने का पड़ता है. हाउ मच डज इट कॉस्ट. सो इट कॉस्ट 1000 rupees, it cost 100 rupees, right? So ये आप कुछ भी कह सकते हो. So दोनों तरीका ये हाउ मच इज दिस या हाउ मच डज इट कॉस्ट, बात एक ही है. और इसका आंसर होता है इट कॉस्ट 10,000, इट कॉस्ट 500, right? Let's move to the next one. अब when you are going generally for the women, I'm talking about the women. So if woman goes to any shop to buy or purchase any kind of dresses, like do you have this in another color? Men also, but generally women. Don't mind it. Okay, so do you have this in another color? क्या ये आपके पास दूसरे कलर में है? पूछते हैं ना हम. Like if you go to any shop, you have bought something, but you don't like the color, so you directly say, hey, do you have this in another color? आपके पास दूसरे कलर में है क्या ये? Answer: yes, I have in blue or black, right? This is, yeah, दुकानदार बोलता है कि this is popular color ma'am, I think it suits you, right? You look gorgeous in this, आप बहुत सुंदर लगोगे आप इसमें. ठीक है. So do you have this in another color? क्या आपके पास ये दूसरे कलर में है? आप ये किसी चीज के लिए भी यूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आप कोई फोन केस लेने जा रहे हो या कवर लेने जा रहे हो, तो मान लो कि वहां पे रेड कलर में है तो आपको ब्लू चाहिए. डू यू हैव दिस इन ब्लू कलर, डू यू हैव दिस इन ग्रीन कलर,
ठीक है, आप नाम भी बोल सकते हो, तो बोल सकते हैं यस आई हैव इट इन ब्लू, यस आई हैव इट इन ब्लैक, राइट। इस तरीके से इसका आंसर दिया जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब मान लो कि आपको कोई डिस्काउंट वगैरह चाहिए, ठीक है, सो कैन यू गिव मी अ डिस्काउंट। एक बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, कैन यू गिव मी डिस्काउंट, क्या आप मुझे इस पे डिस्काउंट दे सकते हैं। सामने वाला अगर है तो डिस्काउंट जरूर देगा, यस आई कैन गिव 50 रुपीज डिस्काउंट, या कुछ परसेंटेज वगैरह में यस आई कैन गिव 10% डिस्काउंट। और वो ये भी कह सकता है कि मैम ये तो वाजिब प्राइस है, ये तो इतना ही होता है कि दिस इज द बेस्ट प्राइस। अगर उसे नहीं देना होगा तो राइट, दिस इज द बेस्ट प्राइस, सो कैन यू गिव मी अ डिस्काउंट, क्या आप मुझे डिस्काउंट देंगे, कैन यू गिव मी अ डिस्काउंट, दे सकते हैं हम। यस आई कैन गिव यू 10% डिस्काउंट, यस आई कैन गिव यू 10% ऑफ, ये भी कहा जाता है, राइट। और अगर नहीं, नो मैम आई कांट गिव यू एनी डिस्काउंट, सॉरी दिस इज द बेस्ट प्राइस, ऐसा ही बोला जाता है। अगर आप दुकानदार हैं तो ये जरूर बोल सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है पेमेंट वगैरह करने की, तो हमें डू यू एक्सेप्ट यूपीआई पेमेंट, कि आप यूपीआई पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। या अगर मान लो कुछ और आपको कहना है तो आप कह सकते हो डू यू एक्सेप्ट फोन पे, डू यू एक्सेप्ट डेबिट कार्ड, डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड, राइट, डू यू एक्सेप्ट नेट बैंकिंग, ये सारा आप बोल सकते हो। इंडिया में यूपीआई बहुत फेमस है, तो यही आप याद रखिएगा कि डू यू एक्सेप्ट यूपीआई पेमेंट, क्या आप यूपीआई पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। तो भाई यस यू कैन पे विथ यूपीआई, तो उनका जो क्यूआर कोड होता है उससे आप पे कर सकते हैं। सो यू कैन पे विथ यूपीआई, स्कैन द क्यूआर कोड मैम एंड बाय इट, राइट। तो जब भी आप मोड ऑफ पेमेंट की बात करते हैं तो आप ये पूछते हैं डू यू एक्सेप्ट, या उसके बाद जो भी चीज आपको बोलना है, यूपीआई या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ओके। सो यू कैन डायरेक्टली से डू यू एक्सेप्ट यूपीआई पेमेंट, डू यू एक्सेप्ट यूपीआई पेमेंट, यस यस you can pay with UPI, no you can't pay with UPI, sorry we do not accept UPI payment। इस तरीके से भी आप आंसर दे सकते हो अगर आपको नेगेटिव देना है तो। Let's move to the next one। अब होता है ना कि like we have purchased something, let's say I have bought this t-shirt, right, but I don't know if it fits well, I don't know if it is tight from somewhere or not, so what I do, I just go there to trial room। So if I have to ask this to the customer, I can directly say can I try this on, can I try this on if it fits me or not। so वो कह सकता है yes the trial room is there, वहां है trial room, yes trial room is there। या ये भी बोल सकता है you can try it, sure you can try it। so if you are a shopkeeper और कोई आपके शॉप पर आता है और कहता है can I try this on, क्या मैं इसे ट्राई कर सकता हूं, yes the trial room is there, the trial room is just in front of you, आपके बिल्कुल सामने है, राइट। सो अगर आपको कोई चीज ट्राई करनी है तो आप सिंपल पूछिए कैन आई ट्राई दिस ऑन, क्या मैं इसे ट्राई कर सकता हूं। इसका आंसर हो सकता है यस ट्रायल रूम इज ओवर देयर, यू कैन ट्राई इट, राइट। मूव टू द नेक्स्ट वन। अब बात करते हैं भाई रेस्टोरेंट वगैरह में आप जाते हो, वहां की कॉन्वर्जेशन कैसी हो सकती है, एंड वी आर गोइंग टू नो दोज सेंटेंसेस, राइट। लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि the waiter comes in a big good restaurants, so waiter comes and they ask this question, what would you like to eat, क्या खाना चाहेंगे आप, what would you like to eat। अब eat की जगह कुछ और भी बोल सकता है, what would you like to drink, क्या पीना चाहेंगे आप, क्या पीना पसंद करेंगे, राइट। सो जनरली खाने के लिए ही पूछा जाता है, इसलिए what would you like to eat, आप क्या खाना चाहेंगे, the answer would be I would like roti and paneer, I would like rajma chawal, I would like ice cream, I would like coke, whatever, right। ये चीज आप यहाँ पे बोल सकते हो, या अगर आप चाहो तो इसका आंसर अलग भी दे सकते हो। उन्होंने कहा what would you like to eat, आप कह सकते हो I would like to eat chapatis, I would like to eat dosa, I would like to eat whatever, इसके बाद जो भी आप बनाना चाहते हो। तो अगर आप टू लगा के कोई चीज बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो, वरना ऐसे ही बोल सकते हो I would like chapatis, I would like rice and pulses, I would like curd and rice, something like that, right। ये आंसर होता है। और ये भी होता है कि भाई आई एम वेरी हंग्री, खाने से रिलेटेड हंग्री वर्ड है कि मैं बहुत ही भूखा हूं, मुझे खाना चाहिए, ठीक है। सो व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, आई वुड लाइक टू ईट chapatis, I would like to eat vegetables, I would like to eat rice and pulses।
कुछ भी इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट, फ्रेंड के साथ कहीं पे जाते हैं तो हम एक क्वेश्चन करते हैं, आर यू हंग्री? आर यू हंग्री? भूख लगी आपको? आर यू हंग्री? सो यस, आई एम वेरी हंग्री। ओ माय गॉड, आई एम वेरी हंग्री। इसके एक और वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं आई एम स्टार्विंग। आई एम स्टार्विंग। अब हंग्री और स्टार्विंग में अंतर ये होता है कि हंग्री थोड़ा सा बहुत आपको भूख लगी है और स्टार्विंग मतलब आप भूख से मरे जा रहे हो, ठीक है। तो इफ समबडी आस्क्स दिस, आर यू हंग्री? यस, आई एम वेरी हंग्री, आई वांट टू ईट नाउ। अभी मैं खाना चाहता हूँ। अगर नहीं हंग्री हो तो बोलोगे नो, आई एम नॉट हंग्री, आई एम फुल। आई एम फुल मतलब कि भाई मेरा पेट भरा हुआ है, राइट। तो ये बहुत ही नॉर्मल सा कन्वर्सेशन है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। The very common question people ask you that what is your favorite Indian food? What is your favorite Indian food? आपका मन पसंदीदा जो इंडियन फूड है वो कौन सा है? आंसर में आई लाइक बिरयानी, आई लाइक राजमा चावल, आई लाइक छोले चावल, आई लाइक छोले भटूरे। ओके, छोले भटूरे इज माय फेवरेट, बिरयानी इज माय फेवरेट। सो दिस इज हाउ आई वी कैन आंसर। अगर कोई भी आपसे सवाल पूछता है कि व्हाट इज योर फेवरेट इंडियन फूड, सो आई लाइक और उसके बाद उस फूड का नाम, आई लाइक राजमा चावल, आई लाइक छोले चावल, आई लाइक डोसा, इडली डोसा और वट एवर यू लाइक, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अभी कभी कभी हम पूछते हैं ना कि भाई ज्यादा तीखा है क्या? इज दिस स्पाइसी? तीखा, माय गॉड, इज दिस स्पाइसी? क्या ये स्पाइसी है? इज दिस स्पाइसी? आंसर यस। वेटर बोलता है यस इट इज अ लिटिल स्पाइसी। हाँ, थोड़ा सा स्पाइसी है। इट हैज स्ट्रॉन्ग फ्लेवर। इसका जो फ्लेवर है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, इस स्पाइसी की जगह हम कुछ और भी बोल सकते हैं कि इज इट हॉट? इज दिस हॉट? क्या ये गर्म है? तो बोलो यस इट इज अ लिटिल हॉट या इट इज वेरी हॉट, ऐसा भी कहा जा सकता है। या मान लो कि अगर वो बोलता है कि इज दिस स्वीट? क्या ये मीठा है? बोलो यस इट इज स्वीट, राइट। तो इस तरीके से इसका आंसर दिया जा सकता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। कैन आई हैव द बिल प्लीज? ये उस सिचुएशन में बोला जाता है जब आपका खाना वगैरह हो गया है तो आप बोलते हो कैन आई हैव द बिल प्लीज? मुझे बिल मिल सकता है क्या? अब आप जा रहे हो, मतलब पेमेंट करके आप जाना चाहते हो, तो कैन आई हैव द बिल प्लीज? मे आई हैव द बिल प्लीज? कुड आई हैव द बिल प्लीज? कुछ भी यहाँ बोला जा सकता है, राइट। तो वो बोलेगा सेम, श्योर आई विल ब्रिंग इट, या यस मैम, ऐसे ही बोल सकता है वो, ठीक है। या प्लीज वेट, ऐसे ही बोल सकता है, ठीक है। तो ये कभी भी अगर आप जाते हो बिल वगैरह आपको चाहिए तो कैन आई हैव द बिल प्लीज, या कैन आई गेट द बिल प्लीज, कैन यू गिव मी द बिल प्लीज, ठीक है। तो इसका आंसर हो सकता है श्योर मैम आई विल ब्रिंग इट। अगर आप एक वेटर हैं तो इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आप खाना सर्व कर रहे हैं तो इस तरीके से भी आप उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। जैसे वेटर आपसे पूछता है वुड यू लाइक सम वाटर? आपको पानी चाहिए? वुड यू लाइक सम वाटर? या वुड यू लाइक टी? वुड यू लाइक कॉफी? राइट। सो आप बोलते यस प्लीज, थैंक यू, राइट। हाँ, क्यों नहीं, बेशक, राइट। सो वुड यू लाइक सम, जो भी आपको चाहिए, वुड यू लाइक सम वाटर, वुड यू लाइक सम कॉफी, ठीक है। वुड यू लाइक राजमा चावल, वुड यू लाइक छोले चावल, वट एवर, जो भी आपको चाहिए। उसके बाद आप उसको पूछता है अगर आपसे वेटर, तो आप आंसर दे सकते हैं यस थैंक यू वेरी मच, प्लीज ब्रिंग इट, कृपया करके लाइए, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे जनरल कन्वर्सेशन हमारा आ जाता है। कोई हमसे पूछता है बहुत बार कि व्हाट आर यू स्टडिंग? मैंने बोला था ना वाला कि पहले था व्हाट आर यू डूइंग, सो व्हाट आर यू के बाद जो भी लग जाता है वो समय हो रहा है, उसकी बात हो रही होती है। तो मतलब व्हाट आर यू स्टडिंग? आंसर आई एम स्टडिंग इंग्लिश। व्हाट आर यू स्टडिंग? क्या पढ़ रहे हैं आप? आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। आई स्टडी एवरी डे, हर रोज पढ़ता हूँ मैं। आई स्टडी एवरी डे। सो व्हाट आर यू, अगर कोई और भी कुछ यहाँ से सवाल हो कि आप कह सकते हो व्हाट आर यू राइटिंग? क्या लिख रहे हैं आप? सो आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग माई रेजिग्नेशन, आई एम राइटिंग एन ईमेल, राइट। ये कुछ भी इसका आंसर हो सकता है, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। वेयर डू यू वर्क? कहाँ काम करते हैं आप? ठीक है। अच्छा, ये वेयर डू यू के बाद अगर कुछ भी लग जाता है तो उसके अकॉर्डिंग मतलब चेंज होता है। पहले इसका देख लेते हैं, वेयर डू यू वर्क, कहाँ काम करते हैं आप? जनरली हम अपने कॉन्वर्सेशन में पूछते हैं आप कहाँ काम करते हो, वेयर डू यू वर्क?
सपोज आई वर्क इन एन ऑफिस, मैं ऑफिस में काम करता हूँ, आई वर्क इन दिल्ली या आई वर्क इन नोएडा, आई वर्क इन गुरुग्राम, वट वेर एवर यू वर्क, राइट? सो वेयर डू यू वर्क? आई वर्क that place, like I work in office, I work in Delhi, I work in Gujarat, I work in Haryana, right? So this is how you can answer. अच्छा, यहाँ पे अगर कुछ चेंज करना होता आपको, जैसे where do you live, कहाँ रहते हैं आप? So I live in Delhi, I live in Mumbai, I live in a big apartment, right? So यहाँ वर्क की जगह कुछ और हो जाएगा, कोई और वर्ब आ जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम आंसर यहाँ पर दे सकते हैं. मूव टू द नेक्स्ट वन. अब कोई काम करके घर से आता है, घर पे आता है, फॉर एग्जांपल मान लो कि आपका कोई ब्रदर है या आपकी कोई सिस्टर है या आपके पेरेंट्स हैं, आते हैं तो वो पूछते हैं हाउ वाज योर डे एट वर्क, कैसा रहा काम पर भाई आपका दिन, हाउ वाज योर डे एट वर्क. तो अगर बहुत अच्छा रहा, ओह इट वाज फैंटास्टिक, इट वाज वेरी गुड, इट वाज ऑसम, बहुत अच्छा रहा. ठीक है, खराब रहा तो oh my god, it was busy, I had a long day. लॉन्ग डे तभी होता है जब आपका वर्क में मन नहीं लगता या काफी हेक्टिक हो जाता है, काफी प्रेशर होता है. ठीक है, तो कोई भी पूछता है हाउ वाज योर डे एट वर्क या हाउ वाज योर डे, सिंपली ऐसे भी कोई पूछता है, वर्क को हटाता है और पूछता है हाउ वाज योर डे. अब वो ओह माय गॉड इट वाज सो बैड, आई वाज सो बिजी, इट वाज टू हेक्टिक. हेक्टिक मतलब बहुत बिजी रहा मैं, ये काम वो काम ये सारी चीजें मैं करता रहा, वक्त नहीं था, राइट? सो इट वाज टू हेक्टिक, आई हैड अ लॉन्ग डे. ठीक है, इस तरीके से बोला जा सकता है. अच्छा एक्सपीरियंस है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा. ठीक है, नेक्स्ट वन. टाइम वगैरह. इफ यू आर एट अ रेलवे स्टेशन एंड समबडी आस्क्स दिस व्हाट टाइम इज योर ट्रेन, there are two people standing with each other, they say like what time is your train, कितने बजे है आपकी ट्रेन? oh my train is at 5 p.m, my train is at 6 p.m, my so I will leave soon, मैं जल्दी निकलूंगा, I will leave soon, मैं जल्दी निकल जाऊंगा, राइट? सो ये सेंटेंस यहाँ पे उतना मायने नहीं रखता, I will leave soon, बट यहाँ ध्यान रखना कि जो अगर सेंटेंस आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, what time is your train, what time is your train, my train is at 6 p.m in the evening, right? अब काउंटर क्वेश्चन पूछना है एंड योर ट्रेन, ओके सो माय ट्रेन इज एट 4 p.m इन द इवनिंग, राइट? सो माय ट्रेन इज एट 4 p.m इन द इवनिंग. सो व्हाट टाइम इज योर ट्रेन मतलब कि भाई कितने बजे की आपकी ट्रेन है. सो उसका आंसर वुड बी सो माय ट्रेन इज एट द टाइम, उसके बाद. ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट. अब किससे ये पूछना हो कि भाई अभी वक्त कितना हो रहा है. सो इसके दो तरीके हैं. पहला, व्हाट्स द टाइम नाउ, What's the time now? It's 4 p.m. It is evening. शाम हो रही है, ऑब्वियस बात है. सो हम किसी से वक्त पूछेंगे तो हम कैसे पूछेंगे? What's the time now? What time is it? भी बोला जा सकता है, right? So that's it about this video. So if you like this video, kindly go and subscribe to my channel, and we'll see you in the next video with something else. But kindly practice this. Whatever I said, first listen to it, pause the video, repeat. Listen to it, pause the video and repeat. And you can also change the sentences according to your situation. Don't take only my sentences, you can have your sentences as well, or you can practice it in front of mirror. Go stand in front of mirror and speak all these sentences. I'm damn sure it is going to help you. So see you in the next video.